नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा आपके साथ। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के सिपला गेरा और कबीरवाड़ा गांव के लोगों ने बीदर में अपनी मांगों को लेकर निकाली विरोध रैली। 2022 के केस को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन विधेयक रोका, एसपीजीपी ने जताया था कड़ा विरोध। 3 टुकड़े होने के बाद कांग्रेस को शरद पवार मिलने की उम्मीद, महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होने की संभावना। ऐसी सरकारें चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले, वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। शख्स ने अपनी पीठ पर गुदवाए पुलवामा में शहीदों के नाम, सीने पर शहीद भगत सिंह का टैटू। अब समाचार विस्तार से। बीदर तालुके के सिपला गेरा और कबीरवाड़ा गांव के लोगों ने आज बुधवार 14 फरवरी को बीदर में गांव की जमीन पर गांव के एक व्यक्ति फर्जी दस्तावेज बनाकर कब्जा कर लेने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और बीदर के अंबेडकर सर्किल से डीसी कार्यालय तक एक विरोध रैली निकाली गई। डीसी कार्यालय पहुंचकर इन गांवों के लोगों ने डीसी और तहसीलदार को इस संबंध में एक मेमोरेंडम दिया और उस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। इस अवसर पर राजकुमार मूल भारती, अभी काड़े, भारत रमेश, लालम्मा, पार्वती, गोड़ियप्पा, शंभूजी, जयशील मेत्रे, नरसिंह के डुड्डी, चंद्रमा और अन्य पुरुष और महिलाएं उपस्थित थे। केपी न्यूज के कैमरामैन पपुराज का कवरेज। जोड़ा से वगैरह गांव में जो भू हरियाणा कर रहे कुछ अब्दुल समद बोल के नाम है, 99 एकड़ का ज़मीन जो है गवर्नमेंट लैंड है। जब हम लोग मैं उधर के मम्मगा हूँ, तो कैसा हुआ बोले तो हमारे ताता अज्जा हमारे डैडी सब उधर ही इंतकाल हो गया। 100 वर्ष के बाद आके वो उसका पानी में नहीं नाम आ रहा। 9 एकड़ 1 गुंठा के पानी में नाम ऐसा है। ये सब लैंड माफिया का काम है। इसको हमारे बिदर के डीसी और तहसीलदार साहब और हमारे जो भी इंचार्ज होते ऑलरेडी हमारे जो इंचार्ज है 10 बार हम लोग कंप्लेंट देने के बाद भी हमारे एक्शन नहीं लिए उनके ऊपर कुछ भी। उन्होंने डेली आके उधर साफ सफाई करना, लोगों को डराना करना, धमकी डालना, ये काम हो रहे। इसलिए हम जिला प्रशासन को अब हम मनवी दिए हैं, आगे जो एक्शन लेते हैं उन्होंने उसके ऊपर हम अटल रहेंगे। जयशील मेत्रे असलत्तर साबरे नमग ಏನಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ನಿಂದ್ರಗೂಡಲ್ಲಿ ಹೊಂಟಾನ ಒಂದು ಜಾಗನೇ ಬೇಡ ಎಸ್ಸಿ ಕಿರಿಸ್ತಾನ ಎಡ್ಡೆ ಕುಲ ನಮ್ಮ ಮಾತು ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಏನೂ ಇಲ್ಲ ಮುದುಕಾಗಿರೋ ಅವ ಖೂನ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ಊರ ನಮ್ಮದು ಜಾಗ ನಮ್ಮದು ಅವ ಬಂದು ಮಾಡತಾನೆ ಹಿಂಗೆ ನಾವು ನೀವು ಮಾಡೇ ಕೊಡಲೇವು ನೋಡ್ರಿ ನೀವು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಸಟ್ಟ ಎ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಡಿ ಸಿ ಬರಬೇಕು ಎಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಬಂದು ಹೇಳಬೇಕು ಮುದುಕಾಗಿರೋ ಊರಾಗ ನಾ 2-3 ತಡಿಯಾಕೆ ಹೋಗ್ಯಾವ ಅದ್ರ ನಾವು ಒಬ್ಬಾಕೇನು ಚಕಸಿದೆ ಹಾಂ ಅದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕಬ್ಜಾ ಆಗ್ಯದ ಸಾಬ್ರು ಎಲ್ಲರೂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತ ಜಾಗ ನಮಗೆ ಅವ ಬಂದು ರೊಕ್ಸಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ರೊಕ್ಸಿಲ್ಲ ಈಗ ಬಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಲತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಪಂಚಾಯತ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಹೆಸರದ ನಮ್ಮ ಗಂಡಂದು ಹನುಮಂತದ ಅವ್ನಿಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳನು ಹೇಳ್ತೆ ಹಿರುಗಳ ಹೆಸರು ಹೇಳನು ಟಿಕೆಟ್ ಪಾರ್ಕೊಂಡು ನೋಟಿಸ್ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾನವ ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ಲತ್ತಾನ ನೋಟಿಸ್ ಅವ ಹೊಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹೊಂಟಾನ ನಮ್ಮ ಒಳಗೆ ದಮ್ಮಿಲ್ಲ ಕೊಡ್ತಾರ ಸಾಬ್ರು ಬಂದು ಕೊಡ್ಬೇಕಿಲ್ಲ ಚಾಲಿ ಹೊರ ಜೀವನ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸತ್ತು ಬರಾಬರಿ ಇಲ್ಲ ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಡಲೇವು ಹಾಂ ನಾವು ಮಾಡೇ ಕೊಡಲೇವು ಸಾಬ್ರೆ ಹಿರುಗಳು ಒಬ್ಬಕ್ಕೇನೆ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಹೋಗಲ್ಬೇಕು ಏನು ಸಿಪ್ಪಲ್ಗೆರೆ ಕಬೀರವಾಡ ಗ್ರಾಮದ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಜನಾಂಗಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ 2 ಸಮುದಾಯಗಳು, ಆ 2 ಸಮುದಾಯಗಳು ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಆ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ವಾಸವಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಅದು ಕೂಡಲೇ ಏನದಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರಲ್ದಪ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕಡಿವಾಣ ಹಾಕಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವನ ಮ್ಯಾಗ FR ಆಗಬೇಕು. ಹಾಕಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಜನರಿಗೆ ಆ 2 ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಜನರಿಗೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಏನು ಅನ್ಯಾಯ ಆಗಲ್ದಪ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಭಾಳ ಈ ಕೇಸಿನಾಗ ಭಾಳ ಒಂದು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಲ್ಲಿಂದ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಅವರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಏನೇ ಯಾರಿದ್ದವ್ರು ನಮ್ಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಇಂಥ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನನಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲ ಅಂತವ ಯಾಕೆ ಹಿಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಇವರೆಲ್ಲ ಹಿಂದೆ ಮಂತ್ರಿ ಅವ್ರ ಕೈವಾಡಿದೆ, ರಕ್ಷಣೆ ಇದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಗ್ರವಾಗಿ ಖಂಡಿಸ್ತೀವಿ. ಇದು ನೀತಿ ಸರಿಯಾಗಲ್ಲ. ಈ ನಿಮ್ಮ ಡಂಬರಾಟ ಬಿಡಬೇಕು, ಬಡ ಜನರಿಗೆ ನ್ಯಾಯ ಒದಗಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಯಾವ ರೌಡಿ ಭೂ ಮಾಫಿಯಾ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಬಂಧಿಸ್ಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಮಂತ್ರಿಗಳು, MLAಗಳು, MP ಗಳು
ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸರ್. ಅವು ಸರ್ ಸುಮಾರು 100 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮನೆ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಸತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಮನೆಗಳು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಖಾತಾ ಇದೆ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಜನರು ವಾಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವು ಬರತಕ್ಕಂಥ ಮನುಷ್ಯ ಆ ಊರ್ದವನಲ್ಲ, ಅವ ಬೀದರ್ದವನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ಇದು ಏನಿಲ್ಲ ಸರ್, ಇವ್ರು ಭೂ ಮಾಫಿಯಾದವ್ರದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಸರ್. ಯಾವುದೋ ಹಳೆ ವರದಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಬಂದು ಪಾಣಿ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗರಿಬಿ ದಬ್ಬಳಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂಬ ಉದ್ದೇಶ ಸರ್. ಸರ್ ನಾವು ಮಾಡಿದಿಲ್ಲ ಸರ್, ಸರ್ಕಾರ ಸರ್ ಆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸರ್ ಸಿಂಪಲ್ಗೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ 99 सर. चिंचोली तालुका के बरपल्ली गांव में एक मां और बेटी ने फांसी लगा ली। 24 वर्षीय शिवलीला आनंद और उसकी बेटी 2 वर्षीय वर्षिता। यह घटना मारपल्ली गांव में मंगलवार शाम करीब 5 बजे हुई, जब घर पर कोई नहीं था। मां ने पहले अपनी बेटी को फांसी पर लटकाया और फिर खुद भी फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतक मां और बेटी के शवों को चिंचोली शहर के सरकारी सार्वजनिक अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया है। घटना के कारण का पता नहीं चला है। पुलिस ने उस महिला के पति आनंद को हिरासत में ले लिया है। केपी न्यूज के संवाददाता असलम खान की रिपोर्ट। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। 2022 में विरोध प्रदर्शन करने पर दर्ज मामले को रद्द करने की मांग के चलते वह सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं। उन्होंने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। दरअसल आत्महत्या मामले में नाम आने पर तत्कालीन मंत्री ईश्वरप्पा के इस्तीफे की मांग को लेकर सिद्धरामैया ने विरोध प्रदर्शन किया था। इसे लेकर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। सुप्रीम कोर्ट में दाखिला याचिका में सीएम सिद्धरामैया ने कहा है कि यह सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन था, इसे कानून व्यवस्था का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। बाद में ईश्वरप्पा ने पद छोड़ दिया था। दरअसल पिछले हफ्ते कर्नाटक हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री सिद्धरामैया की 2022 में उनके खिलाफ दर्ज एक एफआईआर को रद्द करने की याचिका खारिज कर दी। महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिबा गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक को फिलहाल रोकने का फैसला किया है। इस संबंध में भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह ने एक्स पर ट्वीट किया। इसमें उन्होंने कहा कि मेरे पिछले अनुरोध के बाद मुझे अभी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का फोन आया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिबा गुरुद्वारा संशोधन अधिनियम विधेयक को विधानसभा में पेश करने से पहले इस पर व्यापक चर्चा के लिए इसे रोकने का निर्णय लिया है। इस अवधि के दौरान यथास्थिति बरकरार रहेगी और मौजूदा नांदेड़ से गुरुद्वारा सचखंड श्री हजूर अबचल नगर साहिब बोर्ड अधिनियम 1956 लागू रहेगा। शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने इस विधेयक का कड़ा विरोध किया था। महाराष्ट्र सरकार ने गुरुद्वारा बोर्ड में सरकार का प्रभाव बढ़ाने के लिए तख्त श्री हजूर अबचल नगर साहिबा अधिनियम 1956 में संशोधन का प्रस्ताव रखा था। सरकार ने सिख संगठनों के सदस्यों की बोर्ड में संख्या कम कर सरकार की ओर से नियुक्ति सदस्यों की संख्या को बढ़ा दिया था। क्या शरद पवार 25 साल एक बार फिर कांग्रेस में शामिल होने जा रहे हैं? महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होने की संभावना है। सियासी गलियारों में शरद पवार गुट की एनसीपी के कांग्रेस में विलय की चर्चा जोरों पर है। सूत्रों के अनुसार दावा किया जा रहा है कि शरद पवार ने अपने विधायकों और सांसदों की पुणे में तत्काल बैठक बुलाई है। इस बैठक में बड़ा निर्णय लेने की संभावना बताई जा रही है। हालांकि अभी तक कांग्रेस या शरद पवार के गुट की ओर से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। बता दें कि 25 साल पहले शरद पवार ने कांग्रेस से अलग होने के बाद साल 1999 में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी की स्थापना की थी। राष्ट्रवादी कांग्रेस एनसीपी का नाम और चुनाव चिन्ह गंवाने के बाद शरद पवार द्वारा बड़ा निर्णय लेने की बात सामने आ रही है। बताया जा रहा है कि बीजेपी को राजनीतिक चेकमेट करने के लिए यह फैसला लिया जा सकता है। कल 13 फरवरी कांग्रेस के प्रभारी रमेश चन्नीथल ने शरद पवार से मुलाकात की थी। इससे पहले कांग्रेस हाईकमान और बड़े नेताओं की बैठक भी बुलाई गई थी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें
KP News 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं समाचार। महाराष्ट्र कांग्रेस के बड़े नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चौहान के शामिल होते ही भाजपा ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमा दिया है। कुछ साल पहले आदर्श घोटाले में नाम आने के बाद बीजेपी उन्हें जेल भेजने की बात करती थी, लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले विपक्ष के इंडिया गठबंधन को कमजोर करने के लिए भगवा दल हर संभव कोशिश कर रहा है। इस बीच शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट ने अपने मुखपत्र सामना में लिखा, जिस अशोक चौहान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद आदर्श घोटाले का आरोप लगाया था, वह भ्रष्ट चौकीदार भाजपा की वॉशिंग मशीन में धुलकर स्वच्छ चौकीदार बन गया। यूएई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में पीएम मोदी ने कहा कि आज हम 21वीं सदी में हैं। एक तरफ दुनिया आधुनिकता की तरफ बढ़ रही है, तो पिछली सदी से चले आ रहे चैलेंजेस भी उतने ही व्यापक हो रहे हैं। फूड सिक्योरिटी हो, हेल्थ सिक्योरिटी हो, वाटर सिक्योरिटी हो, एनर्जी सिक्योरिटी हो, एजुकेशन सिक्योरिटी हो और समाज को इंक्लूसिव बनाना हो, हर सरकार अपने नागरिकों के प्रति अनेक दायित्वों से बंधी हुई है। पीएम ने आगे कहा कि आज हर सरकार के सामने सवाल है कि वो किस अप्रोच के साथ आगे बढ़े। मेरा मानना है कि आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो कि इंक्लूसिव हो और सबको साथ लेकर चले। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो स्मार्ट हो, जो टेक्नोलॉजी को बड़े बदलाव का माध्यम बनाए। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो क्लीन हो, करप्शन से दूर हो, जो ट्रांसपेरेंट हो। आज विश्व को ऐसी सरकारों की जरूरत है जो पर्यावरण से जुड़ी चुनौतियों को लेकर गंभीर हो। आज ऐसी सरकारों की जरूरत है ईज ऑफ मोबिलिटी, ईज ऑफ इनोवेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को अपनी प्राथमिकता बनाकर चले। आज कुतबुल्लापुर 127 डिवीजन गिरिनगर बीजीआर नगर में तेलंगाना सरकार की ओर से जिन 6 गारंटीज का जनता से वादा किया गया, उस पर अमल करते हुए हर घर को 200 यूनिट करंट फ्री कार्यान्वित की गई। फरवरी के बाद मार्च से यह लागू हो जाएगा। इस अवसर पर कुतबुल्लापुर अल्पसंख्यक बैच के संयोजक सैयद नईम ने केपी न्यूज से बात करते हुए कहा कि तेलंगाना सरकार ने जो वादा किया था उसे हर हाल में पूरा किया जाएगा। इस अवसर पर इलेक्ट्रिक विभाग का स्टाफ और जनता की एक बड़ी संख्या उपस्थित रही, जिसमें गिरिनगर अध्यक्ष सैयद सोहेल, एमडी अजीम, भाग्यलक्ष्मी, एमडी आरिफ, एमडी अरबाज शामिल रहे। कुतबुल्लापुर तेलंगाना से केपी न्यूज के संवाददाता मोहम्मद निजाम की रिपोर्ट। शरीर पर इंक गुदवाने का ट्रेंड बेहद ही पुराना है, लेकिन आज के दौर में लोग अनोखे और क्रिएटिव टैटू करवाते हैं। हालांकि कई ऐसे होते हैं जो अपने पेरेंट्स या अपने करीबी के नाम का टैटू करवाता है, लेकिन भिलवाड़ा में एक शख्स ने कुछ अनोखा ही करने को ठाना। उस शख्स ने अपने शरीर के ऊपर उन शहीदों के नामों का टैटू करवाया जिसको वो समर्पित करना चाहता है। भिलवाड़ा के इस शख्स का नाम नारायण लाल जाट है, जिसने पुलवामा हमले में शहीद हुए 40 जवानों के नाम अपनी पीठ पर गुदवा लिए। उनके इस काम को देखने के बाद लोग तारीफ के फूल बांध रहे हैं। नारायण जाट का कहना है कि उन्होंने अपनी पीठ के ऊपर पुलवामा के शहीदों का नाम इसलिए गुदवाया क्योंकि वह उन्हें हमेशा अपनी यादों में रखना चाहते हैं। उनका कहना है कि वह आने वाली पीढ़ियों को एक मैसेज देना चाहते हैं कि देश के लिए शहीद होने वाले जवान हमारे लिए कितनी अहमियत रखते हैं। उन्होंने अपने सीने पर शहीद भगत सिंह का भी टैटू बनवाया है और लोग उनकी बेहद ही तारीफ कर रहे हैं। मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक एमपी के भिलवाड़ा में रहने वाले नारायण जाट ने यह भी कहा कि कई सारे युवा गैंगस्टर को अपना आइडल मान लेते हैं, जिन्हें समझना चाहिए कि जवान हमारे देश के लिए ढाल बनाकर खड़े होते हैं और उनसे बड़ा कोई भी हीरो नहीं है। लालू यादव आगामी चुनाव में चाहे माया समीकरण बना ले या बाप समीकरण, इससे कुछ नहीं होने वाला। पूरे भारतवर्ष की जनता का लगाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से जुड़ चुका है और आगे भी जुड़े रहेंगे। उक्त बातें केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने उस वक्त कही जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि जातीय जनगणना का मुद्दा एक बार फिर नई सरकार बनने के बाद उठा है। ऐसे में क्या यह कयास लगाए जा सकते हैं कि लालू एवं तेजस्वी यादव के द्वारा आगामी चुनाव में एक बार फिर माया समीकरण पर जोर दिया जाएगा। इसी सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने यह जवाब दिया। वहीं गिरिराज सिंह ने कहा कि भारत की जनता विकास चाहती है और उसे जात पात पार्टी से कोई मतलब नहीं है। देश की जनता ने विकास के रूप में जनता ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सदैव अपना आशीर्वाद दिया है और आगे भी जनता का विश्वास नरेंद्र मोदी पर बना रहेगा। अब फिलहाल लेते एक छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते समाचार। कवरत्ती में इकलौती हिंदू मंदिर मजहबी सौहार्द की मिसाल पेश कर रहा है। मंदिर में स्थापित भगवान विनायक की मूर्ति एक पूर्व मुस्लिम सैनिक ने बनाई है, जो इस धर्मस्थल की शोभा बढ़ा रही है। पीआर चेरिया कोया ने करवत्ती में स्थित मंदिर को हाथ से बनाई भगवान की मूर्ति दान दी है। जहां की 96% आबादी मुस्लिम है, वह एक कला शिक्षक भी है और लक्षद्वीप में अंद्रोत द्वीप में रहते हैं। प्राधिकारियों ने कोया को द्वीप पर अल्पसंख्यक समुदाय की आस्था के लिए उनके उदार योगदान का विवरण देते हुए एक प्रमाण पत्र भी दिया है। करीब 80 वर्ष की आयु के चेरिया कोया ने कहा, मैंने लोगों के प्रति अपने प्यार और सम्मान के कारण ऐसा किया। मैं केरल के कन्नौर और कोझिकोड में पला बड़ा हूँ। मैंने विद्यालयों में पढ़ाई की और शिक्षकों तथा स्थानीय लोगों ने मेरे धर्म की परवाह किए बगैर मुझे बहुत प्यार दिया। कवरत्ती के मंदिर में स्थापित भगवान गणेश की मूर्ति कोया द्वारा बनाई पहली हिंदू मूर्ति नहीं है। वह पहले भी अंदोरत में तैनात मध्य प्रदेश के पुलिस कर्मियों के लिए एक मंदिर में भगवान हनुमान की मूर्ति बना चुके हैं। बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान इन दिनों अपने प्रोडक्शन में बनी फिल्म लापता लेडीज को लेकर चर्चा में है। इस मूवी को उनके एक्स वाइफ किरण राव ने डायरेक्ट किया है। इस बीच आमिर खान ने अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर की रिलीज डेट का ऐलान कर दिया है। साथ ही इन्होंने ये भी खुलासा किया कि वह इस फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुके हैं। इंडियन एक्सप्रेस में छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक मंगलवार को लापता लेडीज की IIM बेंगलुरु में स्क्रीनिंग हुई। इस इवेंट में आमिर खान ने एक्स वाइफ किरण राव के साथ शिरकत की। इस दौरान एक्टर ने अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर को लेकर भी बात की। आमिर खान ने कहा, मैं पिछले हफ्ते अपनी फिल्म की शूटिंग शुरू कर चुका हूं। हम मूवी को इस साल क्रिसमस पर रिलीज करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आमिर खान ने पिछले साल अपनी अपकमिंग फिल्म सितारे जमीन पर का ऐलान किया था। इससे पहले लापता लेडीज के प्रमोशन के दौरान आमिर खान ने बताया था कि मैंने 1 फरवरी से अपनी फिल्म सितारे जमीन पर की शूटिंग शुरू कर दी है। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। बीदर तालुके के सिपलागेरा और कबीरवाड़ा गांव के लोगों ने बीदर में अपनी मांगों को लेकर निकाली विरोध रैली। 2022 के केस को रद्द करने की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया। महाराष्ट्र सरकार ने नांदेड़ साहिब गुरुद्वारा संशोधन विधेयक रोका। एसपीजीपी ने जताया था कड़ा विरोध। 3 टुकड़े होने के बाद कांग्रेस को शरद पवार मिलने की उम्मीद। महाराष्ट्र की राजनीति में एक बड़ा घटनाक्रम होने की संभावना। ऐसी सरकारें चाहिए जो सभी को साथ लेकर चले। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट में बोले पीएम नरेंद्र मोदी। शख्स ने अपनी पीठ पर गुदवाए पुलवामा में शहीदों के नाम। सीने पर शहीद भगत सिंह का टैटू। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।